Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see some laws of equilibrium. Before that we will see the relation between the equilibrium and the constant and ratio constant, reaction constant and Gibbs free energy. Relation between equilibrium constant equilibrium constant gives free energy and reaction coefficient reaction coefficient. ओके, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़े थे और ये रिलेशन भी वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे रिलेटेड है। गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट are related to each other by equation delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log Q. This is the relation between Gibbs free energy and reaction coefficient, where delta G naught is standard Gibbs free energy okay, and Q is the reaction coefficient and delta G is the Gibbs free energy at given temperature. Delta G is Gibbs free energy at given temperature. ओके, नोट कर लीजिए। At have you noted? Okay, at equilibrium delta G is equal to 0 and Q is equal to K. Delta G is equal to 0 and Q is equal to K. Then equation will be delta G naught equal to minus 2.303 RT log K. This is the relation between standard Gibbs free energy and equilibrium constant K. Okay, equilibrium constant K. You can also write this equation
delta G naught is equal to minus RT ln K, minus RT ln K. Then ln K is equal to delta G naught upon RT. Then K is equal to E exponential delta G naught upon RT. ओके, इतनी तरह से हमने रिलेशन देख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है कि देखेंगे, ओके, इसके बाद हमारा जो है कि इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कि ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी एंड की। अब ये जो हमें रिलेशन मिला है, चाहे ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये सारे रिलेशन से हमें ये पता लगेगा कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है, रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन कब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इससे प्रोडक्ट कर सकते हैं एबव इक्वेशन से, ठीक है, कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। इसको नोट कर लिया सबने यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसका क्या यूज़ है उसको देखेंगे, ठीक, इसका क्या यूज़ है उसको हम देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ध्यान में रखना है, इक्वेशन भूलने ना पाए। हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी ले लिया और जो है कि लॉग के फॉर्म में देख लिया, ठीक है, नेचुरल लॉग के फॉर्म में देख लिया रिलेशन, ओके। अब इसके बाद हम the above equation helpful in the predicting the above equation is helpful in predicting the spontaneity of reaction, okay, helpful in predicting the spontaneity of reaction. How will you find the spontaneous or not spontaneous? For example, we will see here. First, if delta G is less than 0 है, okay, then value of delta G naught upon RT will be positive, value of this will be positive, and value of exponential e to power delta G naught upon RT will be greater than 1, and hence K will be greater than 1. If the value of K is greater than, reaction occurs spontaneously, then reaction will be spontaneous, okay, and it will go in forward direction, forward direction. Okay,
तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो स्टूडेंट अभी देखा कि अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू से क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड हमने देखा, देखेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर मोर देन 1 है, ठीक है, यहाँ से माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ओके, ऐसे में हमारा जो ई एक्सपोनेंशियल टू डेल्टा जी अपॉन आर टी, ये जो है कि लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अब ऐसे में हमारा जो डेल्टा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं लेस देन 1 हो जाएगी, 1 से कम होगी। तो रिएक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस and reaction or equilibrium will shift toward backward side or you can say, or reactant will be formed, from product। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब तो ये हमारा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव तो ये कम हो जाएगा, और ये कम हो गया मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब इसमें बैकवर्ड साइड में रिएक्शन जाने लगेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, इस पे इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉ है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, चैप्टर कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो है कि ली, अभी एक चीज़ हमें ये जानना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन, दूसरा हमारा आता है टेम्परेचर, और तीसरा आता है प्रेशर, और चौथा आता है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, और चौथा आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और पांचवा आता है हमारा
addition of catalyst ओके। तो ये फैक्टर है जो कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, और वो कैसे करते हैं, जो उसके लिए लॉ है वो है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले ये जितने कारक हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, इनकी वैल्यू में अगर हम चेंज करते हैं, तो जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाके शिफ्ट हो जाएगा जिधर जाने से क्या होता है, जिधर जाने से इक्विलिब्रियम हमारी बैलेंस हो जाती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है, बैलेंस होती है। एक बार फिर से बताते हैं, ली चार्टियर प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, if we change the value of factors which affect the equilibrium, then reaction will move toward that side in which side equilibrium will be maintained। मतलब कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करें, टेम्परेचर में चेंज करें, प्रेशर में चेंज करें। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और कैटलिस्ट का तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाता है जिधर जाने से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है। ये बात कुछ लिख करके समझ में आएगी। तो पहले हम लोग ली चार्टियर्स प्रिंसिपल लिख लेते हैं और फिर उसके बाद क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, on changing the value of factors which affect equilibrium, then equilibrium will shift, in that direction in which effect of change will be neutralized। ठीक, तो ये ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की वैल्यू में अगर हम चेंज करें तो क्या होगा, इक्विलिब्रिया उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिधर
इधर जाने से चेंज का इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ चेंज न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ऐसे बता दें कि जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, इसको नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया? ओके। तो कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करें, मान लीजिए हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? पहले कोई रिएक्शन हो रहा था, सपोज करो कि यहाँ पे रिएक्शन A प्लस B से C बन रहा है। ठीक है, हमने AB का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अभी ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में था और अचानक से हमने इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद क्या होगा कि ये प्रोडक्ट बनने लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बनने से फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी। रिएक्टेंट अगर ज़्यादा हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तभी तो फिर से इक्विलिब्रियम बैलेंस होगी। ठीक है। और अगर इन केस हम इसका कंसंट्रेशन कम करने बन जाने के बाद या इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने से ये दोनों बनेंगे और फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। फिर से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। अब सेकेंड हमारा है टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रिएक्शन देखिए भाई दो तरह के होते हैं। एक्सोथर्मिक, सपोज कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कि रिएक्शन होते हैं अपने आप हीट निकलने लगती है। एक बार हमें रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है, तैयार स्टार्ट करना होता है कि किसी तरह से जल्दी जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो फिर ही खुद ही हीट आने लगती है। चूने को बस पानी में डालने की देरी है, देखिए फिर क्या होता है, हीट निकलने लगेगी। अगर मान लीजिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हमने यहाँ पे हीट खुद भी निकल रही है, हमने और भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड साइड में आ जाएगा, क्योंकि उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को कंज्यूम करने के लिए इसका डिकम्पोजिशन होने लगेगा। और डिकम्पोजिशन के लिए तो हीट चाहिए, तो हमारी जो एक्स्ट्रा हीट थी वो डिकम्पोजिशन में कंज्यूम हो गई और फिर से इक्विलिब्रियम आ गई, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया। क्लियर है? लेकिन अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हमें हीट देना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है। और जब हम हीट देंगे तो क्या होगा? वो रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो ऐसे केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में तो हमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरा हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर की बात अगर हम करें तो सिंपल सा हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, जैसे इस केस में देखिए रिएक्टेंट 2 मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब बढ़ा हुआ प्रेशर अगर हमें कम करना है तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन अब अगर प्रेशर लो कर दें तो क्या होगा? तब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर हमें प्रेशर का इफेक्ट देखना है और फेवरेबल इफेक्ट देखना है, फेवरेबल का मतलब प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें नंबर ऑफ
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम है यानी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ा दिए तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे पास PCl3 PCl5 है और यहाँ PCl3 बनता है और यहाँ पे Cl2 बनता है। अब इस केस में तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, इनर्ट गैस और कैटलिस्ट का कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि बस ये रिएक्शन को अटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार कहीं न किसी एग्जाम में पूछता भी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।